Challenging. So now let's begin. Inshallah, we'll complete this chapter today. थोड़ा सा ही रह गया है. So starting off with proteins, the last thing that we did for proteins was to understand how peptide bonds are made. ठीक है? So peptide bonds are basically made with the combination of amino acid and how we can remove water molecule in order to make a peptide bond between carboxylic group and amino group. ठीक है? So this was also your homework that you need to make glycosidic bond, you need to make ester bond, you need to make peptide bond. तो अगर नहीं भी किया है, try to do it and then submit it on the group because this is for your own good and this is for your own practice. जितनी ज्यादा इसको बनाने की practice करोगे ना उतना याद रहेगा because like I said that there was this question in my paper to make peptide bond and I was unaware to basically design an amino acid even. मुझे ये नहीं पता था कि अमाइनो एसिड कैसे बनता है तो मैं पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाती. So learn from my mistakes and don't repeat those mistakes. This is for your own good. And now let's begin with the 3D structure and the 3D levels of protein. Okay, how exactly proteins are made. ठीक है, so this is a very important question. It usually comes for 4 या फिर 5 marks. तो important है, सारी चीजें इसकी बहुत important हैं. कुछ लेबलिंग से ले भी आती हैं. So we'll do everything के जब भी पेपर में भी आएगा और अभी भी समझ लेते हैं. So starting off with the 3D levels of protein. सबसे पहला level is primary level of protein, which is that when because you know that we have 20 amino acids, right? We have 20 amino acids abhi tak. So a certain sequence of amino acids in a polypeptide chain is known as primary level of proteins. तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रोटीन बन रहा है? Because उसमें एक certain amino acids की combination हो रही होती है and with those certain amino acids a primary sequence of protein is made कि इवेंचुअली कौन सा प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से सीक्वेंस से या अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनेगा. सो बेसिकली नंबर एंड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि इवेंचुअली कौन सा प्रोटीन बनना है. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर प्राइमरी लेवल organization of proteins, that certain amino acids combine, certain number of amino acids combine and certain types of amino acid combine, and when these amino acids combine they form primary level of proteins. Okay, now then we have the second level, which is the secondary level, and in secondary level we have hydrogen bonds. This is an important keyword. This is actually the basic and the most important keyword that you need to mention when you write about secondary level of proteins. It has hydrogen bonds with alpha helix and beta pleated. So again, there are 3 keywords in this, just in this one line, that you need to mention hydrogen bonds, you need to mention alpha helix and beta pleated की combination से we are able to make secondary level of protein. I'll let you know what alpha helix and what beta pleated are. अगर इसकी कोई मुझे डायग्राम में मिली तो वो भी दिखाती हूँ. बट अभी के लिए समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अब बीच में कनेक्ट होना शुरू हुए हैं. पहले क्या था, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बना इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें सर्टेन नंबर सर्टेन टाइप जो है वो एड ऑन हुई एंड देन उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए हैं बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बिटवीन बीटा प्लीटेड. फिर उसके बाद वी हैव थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन, यानी पहला प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी हुआ. एंड व्हाट एग्जैक्टली टर्शरी इज? टर्शरी का मतलब होता है ग्लोब्यूलर और ग्लोब्यूलर का मतलब होता है स्फेरिकल. यानी तीनों के मतलब बता दिए. टर्शरी का लिटरल मतलब है ग्लोब्यूलर. ग्लोब्यूलर मींस स्फेरिकल. ठीक है, यू कैन आल्सो राइट इट इफ यू वांट टू. अगर याद रखना चाहते हो कि हर प्रोटीन, all the proteins are tertiary in nature, yeah, all the proteins are globular in nature, yeah, all the proteins are spherical in nature. Okay, and how are they made in this structure? They are made by hydrogen bonds, ionic bonds, disulfide bonds, and with the help of hydrophobic interactions. These 4 bonds combine to make a protein in this globular format or in this tertiary format. ठीक है, अगर if it asks you just about one bond कि कौन सा bond is able to make protein in a tertiary shape, तो आप उस पर लिखोगे डाइसल्फाइड. बट अगर क्वेश्चन में थोड़े ज्यादा मार्क्स हैं, let's say 2 marks हैं या 3 marks हैं, तो in 3 marks you need to write all the bonds. You need to mention hydrogen bond, you need to mention ionic bond, disulfide and hydrophobic interaction. But अगर सिर्फ 1 mark की बात हो रही है तो in just 1 mark you need to mention disulfide bond.
ठीक है, बिकॉज डाइसल्फाइड का रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है व्हेन यू आर मेकिंग टर्शरी लेवल का प्रोटीन। ठीक है, सो डाइसल्फाइड 1 मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए ऑल 3 बॉन्ड्स। देन इन क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी इज द फोर्थ लेवल, जो कि कुछ प्रोटीन्स का होता है एंड कुछ प्रोटीन्स का नहीं होता। देखो यहाँ तक तो हर प्रोटीन एक्सिस्ट करता है, टर्शरी तो सब प्रोटीन्स होते हैं, बट फोर्थ लेवल कुछ प्रोटीन्स का होता है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज कुछ प्रोटीन्स में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो अगर किसी प्रोटीन में वी हैव मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, then that protein is going to be quaternary in structure. For example, hemoglobin, बिकॉज हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा, अभी हीमोग्लोबिन आपके सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे उसको, बिकॉज हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो आपका हीमोग्लोबिन इज क्वाटर्नरी इन नेचर बिकॉज इट हैज मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। सो फार आर वी गुड? समझ आ रही है? यस मिस। ऑलराइट, चलो ये आपके स्ट्रक्चर्स भी आ गए। सो नंबर 1, ये आपका है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, दिस इज योर कार्बोक्सिल का ग्रुप, राइट, एंड दिस इज योर अमाइन का ग्रुप। सो इट मीन्स कि दिस इज एन अमाइनो एसिड जो कि अपने कुछ सर्टन टाइप, सर्टन नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन में 10 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, 10 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, तो उससे जो है वो एक सर्टन प्रोटीन अचीव हो रहा है। तो देखिए अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? जब अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे होते हैं, जब छोटे 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 ब्रिक्स कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो छोटे ब्रिक की कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन होता है। देन उनकी देखो अब ट्विस्टिंग हुई, जैसे ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है दिस वन, अब फॉर एग्जांपल वो ट्विस्ट हुआ किस तरीके से? हेलिकल फॉर्म में। if it is combining in a helical form, then you label it as alpha helix, because this is also a most repeated question where they ask इसमें alpha helix कौन सा, beta pleated कौन सा है। तो alpha helix से याद रखेंगे that it appears helical in shape, and beta pleated में sheet type structure लगता है, simple sheet like structure। अभी इसका combination नहीं हुआ है, पर ये कुछ combine होने की उसमें आ रही है। तो जब एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा सिंपल सा, तो इट इज नोन एज बीटा प्लीटेड, एंड हेलिकल फॉर्म इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड्स आ रहे थे? इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिर्फ एक बॉन्ड था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्सेलेंट। तो ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड की कभी कभी लेबलिंग आ जाती है। फिर उसके बाद देखिए अब ग्लोब्यूलर होना स्ट्रक्चर शुरू हो गया, इट इज नाउ बिकमिंग स्पेरिकल इन शेप, तो वो जो है वो आपका टर्शरी हो गया। अब और इसमें देखिए क्वाटर्नरी में क्या हुआ कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई। ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये थर्ड पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एंड ये फोर्थ पॉलीपेप्टाइड की चेन है। तो जब पॉलीपेप्टाइड की चेन वन से ज्यादा हो जाती है तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? सेंस बन गई? Yes. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोटीन्स की दो टाइप्स, मियोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, बोथ आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हीमोग्लोबिन अभी मैंने बताया कि इट इज क्वाटर्नरी इन स्ट्रक्चर, इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, एंड ईच चेन हैज अ हीम ग्रुप। हर चेन के पास एक हीम ग्रुप होता है। सो देयर आर बेसिकली 4 हीम ग्रुप्स। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप्स होते हैं बिकॉज हर चेन के पास एक हीम ग्रुप होता है। सो हीमोग्लोबिन होता क्या है? इट्स द रेड पिगमेंट फाउंड इन योर रेड ब्लड सेल्स व्हिच गिव्स रेड ब्लड सेल्स रेड कलर। ठीक है, सो अभी के लिए दिस मच इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर यू, बस ये चीजें आपने याद रखनी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, फिर आ जाए मायोग्लोबिन। फिर मायोग्लोबिन जो होता है वो आपके मसल्स में होता है, जो पिंकिश कलर होता है आपके मसल्स का, इट्स बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन। तो बेसिकली मायोग्लोबिन इज टर्शरी क्योंकि इसके पास इट ओनली हैज वन पॉलीपेप्टाइड चेन। So we are not going to say that myoglobin is quaternary in structure. It is just tertiary in structure. Why is that? So because it has only one polypeptide chain. And what exactly the role of myoglobin is? It is to hold oxygen and is a muscle protein. Okay, so these are the two roles that you need to remember. कि myoglobin is responsible to hold oxygen. And why is that so? कि basically जब आपका वो टाइम होता है that आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि मियोग्लोबिन में स्टोरेज का ऑक्सीजन होता है, और जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगता है तो मियोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है।
ऑक्सीजन रिलीज होता है तो आपके सारे सिस्टम्स काम करते रहते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज नीडेड इन योर बॉडी, ठीक है। तो आपको ये बस ये याद रखना है दैट मियोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज ऑक्सीजन व्हेन बॉडी इज इन डेफिशिट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब बॉडी में कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की तो मियोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करता है ताकि ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए और फिर आपकी सर्कुलेशन जो है वो होती रहे। ऑल्सो ये याद रखिएगा दैट इट गिव्स रेड कलर टू मसल्स, बिकॉज आई जस्ट मेंशन के जो पिंकिश रेडिश कलर होता है मसल्स का, it is because of myoglobin, and it has also iron containing heme group. हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन में भी होता है और इधर भी होता है। इधर क्यों होता है? बिकॉज जब बॉडी में कमी होगी ऑक्सीजन की तो मियोग्लोबिन के आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप से ये ऑक्सीजन कंबाइन हो सकता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड protein, which is collagen. Collagen, again, it is a quaternary structure, and you need to remember that it is fibrous in nature as well. Fibrous protein है। Fibrous क्यों है? Because it is found in your skin, it is found in your tendons, it is found in bones, teeth. तो ये सब चीजें आपने याद रखनी है। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट होता है। एंड व्हाई इज दिस अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर? इट इज बिकॉज इट हैज 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स which are close to each other. अच्छा, कोलेजन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपने सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी होती है कि कोलेजन फिब्रस यानी कि फाइबर्स हैं इसके पास ना। फिब्रस मतलब दैट इट हैज फाइबर्स इनसाइड, यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा ना जो आपकी बोन्स को होल्ड करके रखेगा। कोई लूज स्ट्रक्चर तो आपकी बोन्स को टुगेदर अपने साथ हेल्ड करके नहीं रख सकता। तो बोन्स के पास क्योंकि ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो बोन्स जो है वो इंटैक्ट रहती हैं, टेंडन्स जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, टीथ आपके अपनी जगह पे इंटैक्ट है। व्हाई? बिकॉज उसको एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ने होल्ड करा हुआ है, ठीक है। तो कोलेजन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वेयर यू नीड टू राइट ईच ऑफ दीज डिटेल। ये सारा टू द पॉइंट है और ये सब चीजें आपकी मार्किंग स्कीम से ये एक्सट्रैक्ट हुई हैं, तो इसलिए इसमें से कोई चीज स्किप नहीं कीजिएगा व्हेन यू आर सपोज टू टॉक अबाउट कोलेजन। एंड दैट के ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाई इज इट क्वाटर्नरी? बिकॉज इट हैज 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एवरी थर्ड अमाइनो एसिड, यानी वी टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फॉर एग्जाम्पल ये चेन बन रही है अमाइनो एसिड की, तो इसमें जो हर थर्ड अमाइनो एसिड होता है, her third amino acid is glycine. It's a very important detail that you need to remember कि जो चेन बनती है अब, यानी एक और अगर हम चेन बनाएं तो इसमें जो थर्ड अमाइनो एसिड होगा वो ग्लाइसिन होता है, ठीक है। ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है। फिर उसके बाद अच्छा, ट्रोपोकोलेजन यानी कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब मिलती हैं तो दे फॉर्म ट्रोपोकोलेजन। एंड व्हेन मेनी ट्रोपोकोलेजन लाई पैरेलल टू फॉर्म फिब्रिल्स that are joined by covalent bonds, fibrils in turn unite to form fibers. हमने ये बात कहीं की थी लास्ट क्लास में, फिब्रिल्स और फाइबर्स की बात हो रही थी, कहाँ हो रही थी? किसी के स्ट्रक्चर में हमने फिब्रिल्स और फाइबर्स को डिस्कस किया था कि फिब्रिल्स एंड फाइबर्स में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सी किसको याद है। किसी को याद नहीं है। हाँ, आपको याद है? नो मीन्स हमने सेल्यूलोज में बात की थी, मैनी फिब्रिल्स ज्वाइन टू फॉर्म फाइबर्स। फिब्रिल्स जो होता है वो एक छोटा पार्ट होता है एंड फाइबर्स होता है वो बड़ा पार्ट होता है। तो पहले फिब्रिल्स बनती हैं, फिर बहुत सारी फिब्रिल्स जब कंबाइन होते हैं तो देन फॉर्म फाइबर्स, ठीक है। बिकॉज फाइबर ज्यादा बड़ी चीज होती है और इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर बट इट इज इन इलास्टिक इन नेचर। फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, वरना अगर ये रिजिड हो तो आप अपनी बोन्स और अपनी मूवमेंट, अपनी लोकोमोशन को इनेबल नहीं कर सकते। तब हम तो फिर सब रिजिड होते हैं ना। अभी वी आर फ्लेक्सिबल, अब मेरा आर्म मूव हो सकता है, मेरी लेग मूव हो सकती है। व्हाई इज दैट? बिकॉज कोलेजन लगा हुआ है। कोलेजन ने उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी है पर इन इलास्टिक नेचर का है। इन इलास्टिक होना जरूरी इसलिए है बिकॉज इलास्टिक चीज आपको पता है कैसी होंगी, वो तो खिंची चली जाएंगी। फ्लेक्सिबल होना इज ओके, बट इन इलास्टिक अगर अगर इलास्टिक होता, एग्जाम्पल बोन्स अगर इलास्टिक होती या टीथ अगर इलास्टिक होते तो फिर क्या होता? इमेजिन करें। में भी इशू होता है और च्यू भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यही होता। और फ्लेक्सिबल, अच्छा अगर फ्लेक्सिबल ना होती, इमेजिन कर लो कि अगर आपके बोन्स और टीथ अगर वो होते हैं फिक्स्ड होते, रिजिड होते, तो फिर क्या होता? बहुत ब्रिटल होते फिर। एग्जैक्टली
तो आपके अगर देखो अभी आपका जॉ मूव हो रहा है, राइट? जब मैं बोल रही हूँ या जब मैं च्यू करती हूँ मेरा जॉ मूव होता है। अगर मेरा जॉ फिक्स कर दिया जाए या रिजिड कर दिया जाए, मैं च्यू नहीं कर सकती। मेरा सारी मूवमेंट जो है वो रिजिड हो जाएंगी अगर हमारा कोलेजन फ्लेक्सिबल ना होता। ठीक है, सो इसका फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक इसके दो कीवर्ड्स हैं। अब जब मैं टेस्ट लूंगी और मुझे कीवर्ड्स नहीं दिखे, तो फिर जो है ना वो फिर देखते हैं फिर हम उस बच्चे के साथ क्या करेंगे। बिकॉज अभी जो है वो कीवर्ड्स बहुत मिसिंग थे, तो ये जो कीवर्ड्स मैं मार्क कर रही हूँ दे आर फॉर अ रीजन। ठीक है, आप लोग अपने साथ मार्क करो। एंड इट हैज ट्रेमेंडस टेंसाइल फोर्स। दिस इज अ वेरी वेरी फेवरेट कीवर्ड, टेंसाइल फोर्स ऑफ सीआई, के ये जो है ना वो हर जगह लिखा हुआ होता है विद रिगार्ड्स टू कोलेजन। इसके पास बहुत अच्छी टेंसाइल फोर्स होती है। टेंसाइल फोर्स मतलब कि अगर मैं अपने आप को जोर से मुक्का मारूं, यानी जोर से मुक्का मारूंगी, ठीक है दर्द तो होगा, पर वो मुक्का फिर भी सस्टेन हो जाएगा, राइट? किसी को हम थप्पड़ मारेंगे तो वो बिल्कुल गिर ही नहीं जाता, थोड़ा सा हाँ सही है शौक लगता है कि वो हो थप्पड़ पड़ गया, पर ये नहीं होता कि वो बंदा बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल उसकी सारी चीजें बाहर आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो वो ये इसका मतलब ये होता है कि वो लार्ज पुलिंग फोर्सेस को विद स्टैंड कर सकता है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोलेजन। ठीक ठीक है, फिर उसके जो एंड्स होते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये कोलेजन की हमने ट्रोपो कोलेजन बनाया, ट्रोपो कोलेजन 3 उससे बनते हैं, ठीक है? तो ये थोड़े से स्टैगर्ड होते हैं, आउट ऑफ स्टेक होते हैं। ये क्यों ऐसा है कि आउट स्टेक क्यों है, स्टैगर्ड क्यों है इसकी एंडिंग्स? ये ऐसे क्यों नहीं है, बस ऐसे होते हैं ना, पैरेलल पैरेलल नहीं है, थोड़े से स्प्रेडेड है या थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस हैं। इसका क्या रीजन होगा, व्हाई आर दे आउट ऑफ स्टेक? साइंसेस वाले बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, लग जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा और मूवमेंट ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जैक्टली। अगर चीजें जो है वो मैं स्क्वीज स्क्वीज कर दूंगी तो वो तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसको स्टैगरिंग और इसको ब्रांचिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को इनेबल करती है। ठीक है, अच्छा जी, अब लास्ट जो है वो वाटर है, तो वाटर कर लें देन वी कैन गो ऑन नमाज ब्रेक। ठीक है, 7 मिनट्स में हो जाएगा। सो बेसिकली वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये सारी जो आपको मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज लिख के दी हैं ऑफ वाटर, दे आस्क यू अबाउट ऑल ऑफ दीज। इसमें से वो आपसे कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, किसी की डिस्क्रिप्शन दे देंगे एंड देन दे आस्क यू कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एग्जिबिट हो सकती है। सो नंबर 1, वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट। ये आपको हो सकता है वो दे दें वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट, और उसके बाद आपको 1 मार्क में लिखना होगा व्हाई इज दैट सो। तो आप यही बताओगे कि वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज उसमें सारी चीजें डिसॉल्व इजीली हो सकती हैं। व्हाई इज दैट सो? इट इज बिकॉज ऑफ इट्स डाइपोल नेचर। ये क्योंकि जो है वो आपका एच क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड हाइड्रो ओ एच क्या होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो जो चीजें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव चीज है तो वो हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, कोई पॉजिटिव चीज है तो वो हाइड्रोक्साइड के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, विच मेक्स वाटर एन एक्सलेंट सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आपको वो दे सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आर एबल टू डिसॉल्व इन वाटर, तो आप उस पर क्या लिखोगे? इट इज बिकॉज वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ऑफ इट्स डाइपोल नेचर। ठीक है, नंबर 2, इट्स अ गुड ट्रांसपोर्ट मीडियम बिकॉज हमारे पास ब्लड है, प्लाज्मा है, और प्लांट्स में फ्लोएम होता है, तो उसमें आपका जो है वो अच्छी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। ये सब चीजों में अच्छा कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है, तो गुड ट्रांसपोर्ट मीडियम में काफी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। विल टॉक अबाउट फ्लोएम एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अभी तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, पर अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लें कि इट्स अ गुड ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये वाला पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि वो कहते हैं कि हाउ इज बॉडी एबल टू मेंटेन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें हम आंसर लिखते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी they'll ask you कि how is body able to maintain its internal body temperature, and then you'll write the name of property that water has high specific heat capacity। एंड बिकॉज आप लोग साइंसेस के बच्चे हो तो आप लोगों ने फिजिक्स ओ लेवल्स में पढ़ा होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली हीट कैपेसिटी इज। ये हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो रेजिस्ट करती है टेम्परेचर चेंज को। अचानक से टेम्परेचर चेंज नहीं होता वाटर का, टाइम लगता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, कि वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और वो उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है, उससे कम नहीं होता।
और वो जरूरी क्यों है? ताकि आपके enzymes they because they work best at 37 degrees Celsius which is your internal body temperature, तो it is important for enzymes, ठीक है? And how is it maintained? It is maintained due to high specific heat capacity. फिर it is a habitat of aquatics, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी मरीन लाइफ रहती है. एंड देन इट हैज हाई लेटेंट हीट, ये भी बहुत पूछी जाती है. सो नंबर वन हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखिएगा. नंबर टू हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. मैंने ये नहीं कह रही कि बाकी नहीं आते, पता चला बाकी ना पढ़ो, पर बाकी भी आते हैं, पर थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं इसके. सो इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसका क्वेश्चन आता है कि हाउ इज कूलिंग अफेक्ट अचीव्ड इन एनिमल्स प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस. तो ह्यूमन बींग्स में अगर बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वेटिंग होती है, और एनिमल्स में पैंटिंग होती है, एंड प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट ट्रांसपिरेशन अभी, बिकॉज इसके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं प्लांट वाला, हम पढ़ेंगे उसमें सब चीजें. सो ये सब चीजें कैसे अचीव होती हैं, हाउ इज कूलिंग इफेक्ट अचीव. सो इट इज यूजुअली अचीव बाय हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. फिर इसमें हाई सरफेस टेंशन है. हाई सर्विस टेंशन का मतलब होता है कि इसमें चीजें जो है वो विदस्टैंड कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बह जाए. जैसे फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट्स होती हैं वो वाटर के ऊपर दे कैन ट्रेवल, राइट? सो हाउ आर दे एबल टू ट्रेवल? बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन. ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं. फिर कोहेजन एंड एडिशन का क्वेश्चन मिलकर आता है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स के साथ. सो अभी के लिए बस वी कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे स्टिक टू, बिकॉज देखो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं एंड दे आर अटैच ड्यू टू कोहेजन, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी इज एडेशन. एडेशन में जब आप कभी पानी पीते हो ग्लास से, ग्लास के इर्द गिर्द कभी देखना कि वाटर के कुछ ड्रॉप्स होते हैं. तो वो वाटर के ड्रॉप्स क्यों होते हैं? इट इज ड्यू टू एडेशन. विल टॉक अबाउट एडेशन इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के कैसे जो है वो वाटर जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट होता है. तो जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट होता है दैट इज द प्रॉपर्टी एडेशन. बट व्हेन वाटर कनेक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे एक दूसरे से स्टिक करते हैं, दैट इज ड्यू टू कोहेजन. एंड देन ऑल द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ये सब वाटर की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है? So with this being said, we have ended this chapter and now we'll proceed with the past papers. So we'll take a 10 minutes namaz break. We'll resume the class at 6:14 and then we'll do few past papers. ठीक है? Till then, Jazakallah.